Hi, I am Avruti Patel. We are starting standard 12th with a first chapter in the unit of reproduction. The first chapter is reproduction in organism. Now here two words is present, reproduction and organism. Organism में reproduction. So what is reproduction? Reproduction is a biological process in which an organism gives rise to young ones or offspring similar to itself, similar to parental individual. It means that elephant produce elephant only, a human being produce human being only. This is a meaning of producing the similar offspring as a parental organisms. Reproduction is a basic characteristics of features of living organism. Non-living things cannot reproduce. So it is one of the fundamental attributes of living organisms. तो then अगर कोई स्पीसीज और लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगी, आगे नेक्स्ट जनरेशन ही फॉर्म नहीं करेगी, तो वो स्पीसीज आगे ही नहीं बढ़ पाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. सो रिप्रोडक्शन इज अ नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज एंड इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व transfer of character from one generation to next generation. So let's say first introduction of this chapter. Each and every organism can live only for certain period of time. The period from birth to the natural death of the organism represent its lifespan. So what is lifespan? The period from birth to the natural death, not एक्सीडेंटल डेथ. इट्स अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ. हम एग्जांपल लेते हैं मे फ्लाई का. इट्स अ इंसेक्ट. उसका लाइफ स्पैन होता है 1 डे का. मतलब आज 20 मॉर्निंग को उसका बर्थ होता है, एग हैच होता है, उसमें से लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, एडल्ट होता है, ग्रो करता है, देन वो रिप्रोड्यूस होता है एंड उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. ये सब कब तक ख़त्म हो जाता है? 21 मॉर्निंग तक. सो मे फ्लाई का लाइफ स्पैन कितना हुआ? 1 डे का. मतलब कि 1 डे में उसने उसके सारे स्टेजेस कंप्लीट कर दिए. जबकि पीपल ट्री की हम बात करें तो पीपल ट्री का लाइफ स्पैन होता है 2500 ईयर्स. मतलब पीपल ट्री का सीड जर्मिनेट होता है तब से लेकर उसकी डेथ होती है, वो पीरियड होता है 2500 ईयर तक का. मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उसकी लाइफ स्पैन होती है. सो लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन फिगर. Elephants, their lifespan is 60 to 75 years. Crows, their lifespan is 10 years. Dog, their lifespan is 25 years. Butterfly, their lifespan is 1 to 2 weeks. Crow का lifespan होता है 15 years. बनाना ट्री का लाइफ स्पैन होता है 25 ईयर्स. काव का लाइफ स्पैन होता है 25 ईयर्स. पैरोट का लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स. क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन होता है 60 ईयर्स. हॉर्स का लाइफ स्पैन होता है 50 ईयर्स. फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन होता है 1 मंथ. राइस प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है 3 to 4 मंथ. टोटोइस का लाइफ स्पैन होता है 100 to 150 ईयर्स का. बेनियन ट्री का लाइफ स्पैन होता है 200 to 300 ईयर तक का. So isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as shorter as few days or as long as a few thousand years. So it is interesting. Some organism लाइफ स्पैन जो होता है वो फ्यू डेज का होता है एंड सम ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन इज द 1000 ईयर और मोर देन 1000 ईयर. So between these two extremes are the lifespans of most other living organisms. जो other living organisms होते हैं उनका भी लाइफ स्पैन इस दो एक्सट्रीम के बीच में ही आता है. मीन्स अ फ्यू डेज एंड 1000 ईयर के बीच में ही उनका लाइफ स्पैन आता है. You may note that lifespan of organism are not necessarily correlated with their size. Some example is given. The size of crows and parrots are not very different, yet their lifespan show a wide difference. We know that crows and parrots
आर बर्ड्स देयर साइज आर सिमिलर, बट क्रोस का जो लाइफ स्पैन होता है वो 15 ईयर्स का होता है, मतलब कि क्रोस बर्ड से लेकर जो डेट होती है उसकी वो 15 ईयर में कंप्लीट हो जाती है, जबकि पैरोट का लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स. Similarly, a mango tree has much shorter lifespan compared to people tree. Mango tree और people tree का जो साइज होता है वो कंपेयर टू सिमिलर ही होता है, बट मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन काफ़ी शॉर्ट होता है कंपेयर टू पीपल ट्री. मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन होता है 300 ईयर्स, जबकि पीपल ट्री का लाइफ स्पैन होता है 2500 ईयर तक का. So whatever be the lifespan, death of every individual organism is certainly, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म बर्थ हो करता है उसकी डेथ होती ही होती है. नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल. इमोर्टल मीन्स कोई भी अमर नहीं होता एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. हम एग्जाम्पल लेते हैं सिंगल सेल. सिंगल सेल जो ग्रो करता है देन आफ्टर मेच्योर होता है, बट एंड ऑफ द लाइफ स्पैन सिंगल सेल वो डिवाइड हो जाता है 2 सेल में और मोर देन 2 सेल में. सो वी कैन से दैट देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल. गिवन दिस रियलिटी, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on earth for several thousand of years? There must be some process in living organism that ensure this continuity. Yes, we are talking about reproduction, something that we take for granted. We know that what is reproduction. In reproduction organism give rise to young ones. So एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो भी इस तरह की प्रोसेस करते हैं और 1000 ईयर तक लाइव रहते हैं. सो नेक्स्ट वन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन. देयर इज their definition is given. Reproduction is a biological process in which an organism give rise to young ones or offspring similar to itself. The offspring grow, mature and in turn produce new offspring. जो offspring होता है वो grow होता है, mature होता है and then after वो again new offspring produce करता है. Thus there is a cycle of birth, growth and death. जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म होता है वो फर्स्ट बर्थ होता है उसका, देन आफ्टर वो ग्रोथ करता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. जस्ट एग्जांपल हम लेकर उसे समझते हैं. ह्यूमन बीइंग जैसे कि वो ग्रो करता है, मैच्योर होता है, रिप्रोड्यूस करता है, न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करता है, अगेन न्यू ऑफस्प्रिंग ग्रो करता है, मैच्योर करता है होता है और रिप्रोड्यूस करता है. मतलब कि जो साइकिल है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू ही रहता है. यू विल स्टडी लेटर चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड. जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड होता है उसमें लार्ज डाइवर्सिटी होती है. डाइवर्सिटी दैट मीन्स वेराइटी. बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो होता है उसमें काफ़ी सारी वेराइटी होती है. प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सम स्मॉल एनिमल्स होते हैं, लार्ज एनिमल्स होते हैं, तो काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती है. एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है तो डिफरेंट टाइप्स के वो मैकेनिज्म को अपनाता है कि वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे. द ऑर्गेनिज्म हैबिटाट्स its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it's reproduce. जो न्यू ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है
उसके ऊपर उसका हैबिटाट, इंटरनल फिजियोलॉजी एंड अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं उसको. So based on whether there is a participation of one organisms or two in the process of reproduction, जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें वन ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, अदरवाइज टू पार्टिसिपेट भी पार्टिसिपेंट करते हैं. सो इससे हम इसके दो टाइप्स कहेंगे, asexual reproduction and sexual reproduction. So what is asexual reproduction? When offspring is produced by single parents, it's called asexual reproduction. मतलब offspring is produced by single parents with or without the involvement of gamete formation. So the reproduction is called asexual reproduction. But what is sexual reproduction? When two parent cells, one is male and second is female, participate in the reproductive process. You know that male gametes produced by male and female gametes is produced by female. So in this process involves fusions of male and female gametes. It's called sexual reproduction. So sexual reproduction means two parents participate in the reproductive process and also involves fusions of male and female gamete. It is called sexual reproduction.